NIT Patna and Atal Innovation Center बिहार विद्यापीठ। आप लोग यहाँ पधारे और साथ साथ आप लोग अपने few of the startups को भी so that they are able to understand what you have in mind and possibly move on that. तो आप सबका स्वागत है। हमारे बीच में एक मनोहर वर्मा है, ये भी विदेशी रह के अब देशी हो गए हैं। हमारे बहुत सारे we have a good combination and lot of the startup maybe you have lot of questions also. तो अगर क्वेश्चन हो तो जितने शॉर्ट में करेंगे उतना बढ़िया जवाब, ज्यादा क्वेश्चन होगा तो मैं ही उसको कैसे कराऊंगा। तो with this now we organize multiple ways. Thank you. Thank you so much. Yes, it is an honor presenting the summit. And I've been coming with the movement. Very big blessings from the God. And we just celebrated our 50th anniversary. Just about. But when you I have to say, it's because God has constant support. Just we as an entrepreneur, we जब आपको जो दुनिया लग जाती है, दुनिया की होना भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि मेरे घर में मेरी पत्नी मेरी सलाह कर रही है, क्या घर में भी बैठे रहे कि पत्नी उस रूम में and if she does not support you, but I'm there. So my talking about biggest thing is हमेशा से मैं चाहता था कि आज प्रमोट हर बच्चा यहाँ का बड़ा हो और हर कॉलेज का जो whether it's engineering college, whether it's any other business college, management college, that their graduates become job providers. As you as a entrepreneur, we know that एक entrepreneur बनता है, but that entrepreneur supports 50 families. So that's what that's the main. I mean, you have to that's what that's. So we AIT Sindhi is the 75th anniversary, and the talk and the session which I'm heading is that AIT Sindhi graduates to be job. ऐसे ट्रेनिंग दीजिए उनको, ऐसे उनको पढ़ाइए, that's what they start. So what happens is that हम लोग की जो education system है यहाँ पर, मैं भी उसी में हमारे education system में you have first of all छोटे बच्चे में you have to compete in the exam, even to get to the first that parents with school, और उसके बाद you kind of do that and बच्चे parents पढ़ा रहे रटा रहे बच्चे, and then we grow up, we grow to the high school stage, and then all we do is because that is the system. Nothing to do with it is not fault of anybody, but that is the system.
So, वो जो हम लोग and that actually kills our critical thinking skills. जो भी कर रहे हैं हम लोग ऐसे ओके प्रीवियसली क्या हुआ जैसे कोर्ट सिस्टम में देयर इज नथिंग न्यू व्हिच इज इन्वेंटेड कोर्ट सिस्टम मतलब अच्छा आज से 100 साल पहले इसके पे क्या डिसीजन एंड दैट्स हाउ दिस इज न्यू वर्ल्ड दिस इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ल्ड that thinking process it may be okay for Raju because he's an attorney and there has to be some things which he has to do so but it's not why it is okay for this is because at that time when they were doing the constitution or the law when they were writing the laws they did the hypothesis and they tested those hypotheses and they kept on modifying those hypotheses, proving and pivoting those hypotheses till they're proved in the AFC at this moment. Coming back here, that's what we do. So the children here, they're not the and हमारे सबके बच्चे सबके साथ एक problem. So what does critical thinking mean? You know, when you say critical thinking, it's the biggest thing which I think what we have done here, the Indian recently what we have done, critical thinking is space में हम अपना rocket भेजते हैं. Now Chandrayaan को भेजा. Our cost was less than 50% of anybody else. Well, because thanks to our scientists. Thanks to our the leadership at that ISRO, that they really they said, got to do this kind of thinking. And उन्होंने कहा, with the current resources, whatever resources are available to us, how can we do it? How can we bring the costs down so that बाकी सब जगह जहाँ करोड़ में काम होता है यहाँ ये भी that's what they do, right? Resource available. They look at what is abundance resource, what is exponential resource. They look at that. They look, oh my God, Earth's gravitational force. Why don't we use the Earth's gravitational force to increase the speed of rocket each time it goes around the Earth? And surely it did not happen in 5 days. The spaceship didn't land on the moon. It took more than 30 days. Now, that was a little bit of thinking that so critical thinking so that बचपन से क्या है कैसे है आज what are the different solutions कोई भी प्रॉब्लम हो क्या हमें डिफरेंट सॉल्यूशन यहाँ से आपको जाना है just think about it you want to go to from here to say here to there like today you might not have so stuck but सोचा मैं सब बोलेंगे आज तो पूरा आपको खाली रास्ता मिलेगा क्योंकि चढ़ तो भी boy what a wrong calculation because of it's not hard you know what we should do is really something to do cable car banate so we did but the point is that's we should start that's the second part which we need to teach our strength and that presentation skills how do you present what do you do जो कि जो आपके दिमाग में है उसको इजीली आप पेपर में लिख सकते how can we do that and how do you make it simple the complex situation is actually put simple way इतना बढ़िया से इसरो साइंटिस्ट ने भी समझाया कि चंद्रयान कैसे किया every kid all of us know it even with gravitational force also that simple language. So the presentational skills has to be, that's what will make you go to the next stage.
मैं क्लास पढ़ाता हूँ, तो उसमें क्या होता है कि there are kids and they only same group of kids will answer the question. Same वही क्लास के 15-20 बच्चे जो कि हाथ का that's something good here. And because they are डर है उनको कहीं मेरा सवाल गलत हो, कहीं राज जो मेरे साथ बैठा हुआ है कि ये रसोई में क्या सवाल पूछे। That's it. That part of it is a very बच्चे yes do make a mistake. Entrepreneurship में गलती होना is a value, is where you create your value. गलती होना, because only way you can learn when you make it. Because you know you have a hypothesis. When I say mistake means you have a hypothesis, you are trying to prove that hypothesis, or उसमें अगर maybe that hypothesis is wrong, you may like that end of the game, you find it wrong. Don't worry, you pivot and do start all over again. So the third is that what is the leadership skill. This is empathetic leadership. कि आप ये समझे कि जो आपके साथ जो काम कर रहे हैं, जिसके आप हेल्प ले रहे हैं, जो आपके एम्प्लॉइज हैं, जो आपके कोलीग्स हैं, जो आपके बॉस है, कोई भी हो, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, and admire that strength. Admire that strength. Don't go after the weakness of those people. Admire the strength. And जहाँ पर वो weak है, वो give them support. Be empathetic about it. तब क्या होगा? All of a sudden, everybody together will get success, and they will be one place. It's about There is a problem with the startup in this particular matter. They want how to build a team. We are talking about that. right. Yeah. So anyway, that's I'll finish this actually this one and then I'll clear. So you have to leadership. So having said that, I'm make sure critical thinking. What is second is presentation skill. रटाना नहीं है बच्चों को, रटाना तो मस्त याद रहता है भी कब के था उसमें, but when बच्चा understands the thing, बच्चा और adult तो याद करने की कोई जरूरत नहीं, right? This is it. So and then of course you go ahead and do the presentation skill and leadership. So now having said that, that was the whole thing. What I want you to hear, what do you want to hear? What are your challenges? Where is the question? And I would like to hear that. We will talk to the Sure, some more of them. sure, absolutely. Then perhaps I we agree with you. Thank you, sir. सबसे पहले तो मैं केसरी साहब को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो आपको यहाँ पे हम लोगों के नजदीक प्रस्तुत किए, और आप अभी जितनी बातें भी बोल रहे थे वो यहाँ के स्टार्टअप के लिए काफी जरूरी है। और जैसा कि हम लोग सब लोग यहाँ जानते हैं कि यहाँ पे स्टार्टअप इकोसिस्टम थोड़ा डिले शुरू हुआ है, और अभी और अन्य जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं और गवर्नमेंट के सहयोग से धीरे धीरे इकोसिस्टम बन रहा है। और मैं यहाँ का जो मैनेजमेंट संस्थान है चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, उसका भी चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हूँ, और साथ ही यहाँ का एक प्रमुख लीडिंग इंक्यूबेशन सेंटर है CRMP बिजनेस इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन फाउंडेशन, उसका CEO भी। तो हम लोग दिन रात स्टार्टअप के साथ काम करते हैं और ये देखते हैं कि कहाँ पे
जरूरत है, जैसे आपने कहा क्रिटिकल थिंकिंग की, या तो धीरे धीरे यहाँ पर उस वो माहौल बन रहा है। और टाई के यहाँ आने से जो अभी हम लोगों ने भी जो टाई ने भी जो ये यहाँ पर अभी इस साल हम लोगों ने जो सोचा है वो मेंटरशिप के हम लोग यहाँ पर नर्चर ही करते हैं। अभी अभी इस साल टाई का जो यहाँ पर हम लोगों ने सोचा है, टाई का 2 ही प्रोग्राम यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। एक टाई नर्चर जो टाई सिस्टम में काफी प्रभावी है, टाई नर्चर यहाँ हम लोग शुरू कर रहे हैं 6 मंथ का। और किरण देश पांडे जी आप जान रहे होंगे, टाई के ग्लोबल ट्रस्टी हैं, वो उसको खुद देख रहे हैं। और दूसरा मास्टर क्लास, ये 2 चीज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं टाई के तहत। और इसमें जो टाई के अलग अलग चैप्टर्स के जो लोग हैं, जो मेंटोर्स हैं, वो सारे लोग यहाँ पे हम लोगों को मदद कर रहे हैं। हमें ये जान के बड़ी खुशी हुई कि आपका आप बिहार से आप संबंध रखते हैं, और उसमें भी हम आपका जो ये बता रहे थे, सो मैंने देखा कि आप एंटरप्रेन्योरशिप पे आप क्लासेस लेते हैं, आप बीआईटी सिंदरी से जुड़े हुए हैं। अभी हमारे एक और कुलीग जो टाई में हमारे साथ सेक्रेटरी और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, वो सिंदरी से ही है, बीआईटी सिंदरी से ही है, और वो इंडियन ऑयल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो सिंदरी के बीआईटी सिंदरी के यहाँ पे कई लोग हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप में काफी मजबूत तरीके से कर रहे हैं, जिसमें एक विभास कुमार जी हुए, दूसरा जो यहाँ सिंदरी की जीएम है वो भी बीआईटी सिंदरी से ही है, अनुभा प्रसाद जी। और मुझे नहीं पता कि आप कब तक यहाँ पे हैं, क्योंकि अगर आप मंडे को यहाँ हैं तो मैं आपको अपने संस्थान विजिट कराना चाहता हूँ। प्लस यहाँ के जो कुछ इकोसिस्टम है, जैसे बी हब सरकार ने डेवलप किया है, जिसको आईआईटी और सीएमपी मिलकर चलाती है, उसके साथ ही साथ हमारे यहाँ सीएमपी में पीजीडीएम इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेंचर डेवलपमेंट का भी कोर्स है। हम लोग 2 साल का पीजीडीएम आईवी कोर्सेस भी चलाते हैं, और उसमें हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप की पढ़ाई कराते हैं, और उसको पिछले साल से हमने शुरू किया है। और बहुत अच्छी बात है कि सरकार का भी इसमें काफी सपोर्ट है, गवर्नमेंट भी इसमें काफी स्कॉलरशिप वगैरह दिया है। तो धीरे धीरे जो है ग्रेजुअली यहाँ पे स्टार्टअप इकोसिस्टम बन रहा है, और इसमें सारे जो जितने भी इंक्यूबेटर्स हैं या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सारे लोग इसमें मिल करके कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम लोगों को जो जरूरत है यहाँ के इकोसिस्टम को, आप लोग जैसे जो मेंटोर्स हैं, जो जो जिनका एक पूरा अनुभव है इसमें, वो यहाँ पर भी अलग अलग इंक्यूबेशन सेंटर के साथ मिल करके आप जो है पूरा हमारे स्टार्टअप को मेंटरशिप दें। और मैं आपको, चूंकि हमारे यहाँ आईवी का क्लास कोर्सेस भी चलता है, तो मैं आपको इनवाइट करूंगा कि आप हमारे यहाँ भी जब भी आपको मौका मिले, ऑनलाइन ही मिले, बट हमारे बच्चों को भी, जो हमारे आईवी के बच्चे हैं स्पेशली, उनको आप जो है बीच बीच में जब आपको मौका मिले आप गाइड कीजिए। और ये बहुत खुशी की बात है, और हम चाहेंगे कि जो भी बिहार सिलिकॉन वैली या जो बिहार के हैं वहाँ पे, और वो अगर यहाँ आते हैं तो आप जरूर हम लोगों में से बताएं, ताकि हम लोग इनको किसी तरीके का उनके साथ बातचीत कर पाए और उनसे बहुत सारी चीजें सीख पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो सर, थैंक यू सो मच मुझे इन्वॉल्व करने के लिए आईआईटी पटना से। हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है कि हम कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर सकें, और इट्स बीइंग अ प्लेजर कि आपसे आज मुलाकात हुई। और एक बीआरडी का हमेशा से एक मेजर रोल रहा है पूरे इकोसिस्टम को स्टैंड करने में, और हम लोग बहुत छोटे से इस चीज को देख रहे हैं। सो इट्स अ ग्रेट लर्निंग फॉर मी ऑल्सो टू बी अ पार्ट ऑफ इट। सबसे इम्पोर्टेंट है सर कि हम लोग जो यहाँ पे जो सेशंस हमारे यहाँ पे होता है, हमेशा कुछ ना कुछ हम स्टार्टअप से रिलेटेड हमेशा करते रहते हैं। तो आईआईटी पटना का जो इंक्यूबेशन सेंटर है, वहाँ पे 2-3 इंक्यूबेशन सेंटर्स हमारे जो अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग सेक्टर्स में काम करता है।
इसके साथ साथ हम लोग बिहार गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करते हैं। हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, लाइक डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में आईडेक्स का है जो डिफेंस पे काम करता है, उनके लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। डिफेंस में हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, ड्रोन सिस्टम से लेके बहुत सारी चीजों पे, नई टेक्नोलॉजीज पे कैसे काम कर सकते हैं। देन हमारे पास बायोटेक का प्रोजेक्ट है, तो मेडिकल उसके लिए कैसे और उस पे इनोवेशन लाया जा सकता है। तो यहाँ पे बिहार कहीं ना कहीं हमारा कहीं ना कहीं कभी कभी लैक होता है, तो इट्स अ ग्रेट टाइम कि उनको हम लोग स्टैंड होल्ड कर सके। और इम्पोर्टेंटली अभी हमारे पास प्री इंक्यूबेशन सेंटर है जीरो लैब। सो करेंटली मैं 2 प्रोजेक्ट को हेड कर रही हूँ फ्रॉम आईआईटी। एक इंक्यूबेशन सेंटर, प्री इंक्यूबेशन सेंटर, that is Zero Lab. Second is B-Hub, that is in Fraser Road, that is lead by IIT Patna, in Fraser Road only. So अभी वहाँ पे हम लोग का ये मकसद रहता है कि हम स्टार्टअप को डिफरेंट एरियाज में सेग्रीगेट कर सके। सबसे पहले यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्री इंक्यूबेशन में वो समझ सके कि स्टार्टअप चीजें हैं क्या। इट्स नॉट जस्ट अ पैशन कि लोग स्टार्टअप कर रहे हैं तो हम भी स्टार्टअप करने लग जाए। इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि नए बिजनेस और स्टार्टअप्स में जो डिफरेंसेस है वो एक डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। आप जो है एक दूर तक जर्नी तय करते हैं और उस जर्नी में बहुत डिफिकल्टीज आती हैं, तो वो डिफिकल्टीज को इनिशियल स्टेज में समझना एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम क्या इनोवेशन ला रहे हैं, हम उस पर कैसे काम कर रहे हैं। हमारी जर्नी सिर्फ हमारी जर्नी नहीं है, हम सबका कहीं ना कहीं इसमें रोल प्ले होता है। तो आपका अचीवमेंट हमारा अचीवमेंट है, आपका फेलियर हमारा फेलियर है। तो हम लोग प्री इंक्यूबेशन में उनको इनिशियल स्टेज में वो मोटिवेशन, वो लर्निंग्स देते हैं फ्रॉम डिफरेंट एक्सपर्ट्स। सो सर मैं भी चाहूंगी कि आपका प्लीज हमारा सेशन मिले। जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं यहाँ पे, ऐसा कोई फेस नहीं है जो जरूर आपको ना जानता हो। कहीं ना कहीं सारे हमारे यहाँ पे सेशंस लिए हैं, कहीं ना कहीं ग्रो किए हैं। सो एक इंस्टीट्यूशंस बहुत हेल्पफुल रहता है स्टार्टअप को बैक सपोर्ट करने के लिए, और एक स्टार्टअप को बहुत तरह का सपोर्ट चाहिए होता है, फ्रॉम BIA, फ्रॉम CIMT, फ्रॉम IIT, फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूट आउटसाइड बिहार ऑल्सो। क्योंकि जो सपोर्ट हम नहीं दे सकते उन्हें जहां से मिल रहा है हम कहते हैं वहां से ले लो। तो तुम्हें तो एक्चुअली में ग्रो करना है। तो सर ये जो जितनी भी जर्नी है हम लोग उनको प्री इंक्यूबेशन में उनको इस तरह से हेल्प करते हैं कि उनको सही मेंटर सही टाइम पे मिल जाए। राइट टाइम, राइट प्लेस एंड राइट अपॉर्चुनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी स्टार्टअप। तो हमारा जितना भी सेशंस होता है हम उसको पर्टिकुलरली उस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं। जो वॉक इन हमारे पास आते हैं उनका अलग चैनल होता है हमारा, जो प्री इंक्यूबेशन के हैं, जो अंडर रिव्यू में है बहुत सारे स्टार्टअप्स, आफ्टर सिलेक्शन या बिफोर सिलेक्शन दे गॉट 3 month टाइम टू रीइवैल्यूएट देयर वर्क कि उनका आइडिया सही है गलत है, या उन्होंने जल्दबाजी में तो कुछ नहीं कर दिया, या अगर कॉन्फिडेंस की कमी है या क्लैरिटी नहीं है, तो उनको फिर से वापस एक प्री इंक्यूबेशन प्रोग्राम मिलता है। देन सर जब वो आगे बढ़ जाते हैं तब उसको अलग अलग लेवल पे हेल्प मिलता है, लाइक इंक्यूबेशन सेंटर का मेजर रोल आ जाता है। From CIMT, from co-working places, from IIT Patna, different institutions are there to help them in reaching their goal in the incubation centers. तो वहाँ पे सर उनको मार्केट स्टडी, हम सच में जो मार्केट पे काम कर रहे हैं, मैं यहाँ पे बहुत ही प्रॉब्लम देखती हूँ स्टार्टअप के बीच में, उनका टारगेट मार्केट उनको बहुत बार पता नहीं होता है, या किसी इन्वेस्टर ने बोल दिया ये करना है तो वो उधर डाइवर्ट हो गए, या फिर मतलब किसी चीज को चेज करते रहते हैं और अपनी चीजों को भूल जाते हैं। तो ये चीज उनकी बहुत बड़ी इश्यूज है कि वो फोकस रहे अपने स्ट्रेंथ पे जिस पर उनको काम करना है, एंड दे शुड नो देयर वीकनेसेस आल्सो, कि आखिर मेरे कॉम्पिटिटर कैसे काम कर रहे हैं या क्या प्रॉब्लम है जो वो सक्सेस नहीं कर पाया मैं कैसे कर रहा हूँ। तो ट्राई टू डिफरेंशिएट योरसेल्फ अ लिटिल बिट, अदरवाइज फिर बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है, चैलेंजेस होती हैं। सेकंड सर इम्पोर्टेंट यहाँ पे हम लोग ये भी देखते हैं अपने स्टार्टअप से इंटरेक्ट करने के बाद टीम बिल्डिंग का बहुत प्रॉब्लम आता है, जैसा हम डिस्कस कर रहे थे टीम बिल्डिंग के बारे में। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कोई स्टार्टअप अगर हायर कर रहा है तो कुछ स्टार्टअप्स अच्छे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो टीम में एक अच्छा सा अपना SOP बना के रखे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। बट मैक्सिमम स्टार्टअप्स के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि उनके यहाँ पे लोग आते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि वो उस चीज को होल्ड नहीं कर पाते कि हमें टीम को कैसे मैनेज करना है, उनके साथ कैसे काम करना है, उनको क्या बोलना चाहिए, हमारा कैसे SOP डिजाइन होना चाहिए, या फिर बहुत तरह के चैलेंजेस है। आप उनको सही लाइक सिस्टम में ऐड नहीं कर रहे हो, उनकी चीजों को लाइक जो उनमें स्किल है वो शायद यूटिलाइज नहीं हो रहा, या फिर उनको जितना चाहिए सैलरी उतनी नहीं मिल रही, तो उनको होल्ड करके रखना अपने साथ टीम बिल्डिंग में वो बहुत जरूरी है। अपने अपने लोगों को वो अपॉर्चुनिटी दिखाना कि आप भी बड़े हो गए हमारे साथ। तो ऐसे 3-4 सेक्शंस हैं जिसमें स्टार्टअप की बहुत ज्यादा नीड है मेंटरशिप के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट तो मैंने बताया आपको नेटवर्किंग, मार्केटिंग और ये टीम बिल्डिंग, ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोडक्ट डिजाइनिंग डेवलपमेंट अगर हम IIT से कर रहे हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से कर रहे हैं, हम सब कर लेते हैं। टेक्निकल बंदा नॉन टेक्निकल चीजें नहीं जान पाता, नॉन टेक्निकल बंदा टेक्निकल चीजें नहीं जान पाता।
तो हमें टीम उस तरह से क्रिएट करनी पड़ती है। अच्छे को फाउंडर्स नहीं होते जिसके कारण हम बस वन हेडेड चलते रहते हैं और वी डिडंट गेट एनी अपॉर्चुनिटी। तो सर आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज स्टे कनेक्टेड विद अस और हमें भी अपॉर्चुनिटी दीजिए कि हम आपको बुला सकें अपने यहाँ पे, अपने स्टार्टअप से भी मिलवाएं और रेगुलर बेसिस पे हम सेशंस कर सकें, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, बिकॉज अ मेंटर लाइक यू, so much of experience can definitely add value to our ecosystem in Bihar, and that is much needed. थैंक यू सर। BIA की तरफ से ये जो सेशन हो रहा है थैंक यू टू केसरी जी कि इन्होंने इस तरह का किया है। मैं अटल इंक्यूबेशन सेंटर है, सिंगल इंक्यूबेशन सेंटर है जो नीति आयोग के द्वारा स्थापित किया गया 2019 से हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन बिफोर दैट अगर इंक्यूबेशन सेंटर की बात करेंगे 2020 में आया है, लेकिन मैं 89 से एंटरप्रेन्योरशिप पर काम किया हूँ। यहाँ पर बिहार में उद्यमता विकास संस्थान था, फर्स्ट ट्रेनर थे और हम लोगों ने 89 से, जब मैं 89 में अहमदाबाद गया था, ईडी अहमदाबाद गया था, ईडी अहमदाबाद में हम लोगों को 2 महीना रखा गया था। उस समय में IDBI का रोल था, डेवलपमेंटल रोल था और उस समय में लोगों की चिंता थी कि बिहार को एंटरप्रेन्योरल स्टेट कैसे बनाना है। एक थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ। जब हम लोगों की आपस में बात हो रही थी तो उसने एक का एग्जाम्पल हम लोगों ने सुना कि बिहार में कोई एंटरप्रेन्योर बनता है तो इसकी शादी नहीं होती है। जब गुजरात के कोई ट्रेनर ने कहा कि जब कोई नौकरी करता है तो उसकी शादी नहीं होती। विरोधाभास है, मैंने यहाँ की सोसाइटी में विरोधाभास है। आपने जो पॉइंट रेज किया है सही रेज किया है कि ग्रास रूट लेवल से जब तक एंटरप्रेन्योर्स नहीं आएंगे तब तो स्टार्टअप की बात नहीं करेंगे, ड्रोन की बात नहीं, IoT की बात नहीं। और जो हम चैलेंज फेस कर रहे हैं एज ए इनक्यूबेटर चैलेंज कर रहे हैं, बिकॉज हमारी जो इंक्यूबेशन सेंटर है थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि ये विद्यापीठ 100 ईयर्स ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है और वो गांधी जी के द्वारा स्थापित किए गए थे, जिसमें राजेंद्र बाबू सारे लोगों का मौलाना मजरूल हक था। तो उसमें हम लोगों ने जो सिस्टम जो डेवलप किया है वो किया है कि 4 तरह का लैब, क्योंकि बेसिकली देखना होगा कि बिहार की इश्यूज क्या है, चैलेंजेस क्या है बिहार में। तो हम लोगों ने 4 तरह का लैब यहाँ लगाया है। जो पैकेजिंग का मेनली इन्होंने भी कहा, हम लोग देखते हैं कि पैकेजिंग का बहुत प्रॉब्लम है, लोग प्रायोरिटी नहीं देते हैं, क्योंकि कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट हम बनाते हैं, बहुत सारे चीज बनाते हैं, लेकिन यहाँ की ट्रस्ट नहीं होती है कि हम पैकेजिंग कैसे करें। इसके लिए हम लोगों ने पैकेजिंग लैब लगाया है कि कैसे टेस्टिंग होगा, कैसे ह्यूमिडिटी चैम्बर के थ्रू कैसे आप करेंगे। दूसरा हमारा है कि हम लोगों ने IoT लैब हम लोगों ने लगाया है। इसके बाद हमने टेस्टिंग लैब है हमारे पास में, अभी तो आया नहीं है हमारे यहाँ, NAPL अप्रूव्ड टेस्टिंग लैब है, जो टेस्टिंग लैब डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग होती है। इसके बाद हमारा एक लैब है जो कि अल्टीमेटली मार्केट इकोनॉमी है, और वो मार्केट इकोनॉमी में हमें सेल करना पड़ता है, नॉलेज को सेल करते हैं। स्टार्टअप की कमी होती है क्योंकि उसको यूट्यूब पर डालना है, सोशल मीडिया पर डालना है, इसलिए हम लोगों ने छोटा सा एक स्टूडियो बनाया है और तब हम सपोर्ट करते हैं। क्योंकि हमारी जो इंक्यूबेशन फैसिलिटीज है बेस्ड ऑन ये जो लैब हमारा है उसके हम प्रोडक्ट करते हैं। और बेसिक मेजर चैलेंज है लोगों की क्या, कि लोगों की यहाँ अभी हम लोगों के पास में पिछले 4-5 साल से हम काम कर रहे हैं, हमारे पास में सीड कैपिटल असिस्टेंस का पैसा है, पैसे की कोई कमी नहीं। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे आपस में, पैसे कमी नहीं है और लोगों की करने की भी अभिलाषा है, लेकिन क्या है थोड़ा सा कहीं ना कहीं माइंड सेट में जो है ना एक क्लैरिटी नहीं है कि हम जो कुछ करना चाहते हैं तो हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इकोसिस्टम नहीं है। मेजर जो इश्यूज आ रहा है मेंटरशिप का रहा है, क्योंकि हम लोग बेसिकली यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप की हम बात कर रहे हैं। ग्रास रूट लेवल से इतने अच्छे इनोवेशन आ रहे हैं ग्रास रूट लेवल पे, लेकिन इसको एक नर्चर करने की जरूरत है, मेंटर्स करने की जरूरत है, इसको ऊपर तक ले जाने की जरूरत है। क्योंकि जब तक हम नर्चर नहीं कर, सब चीज कर सकते हैं लेकिन नर्चर करना हमारा इंक्यूबेटर का काम है। अभी अच्छा है रहा है, पिछले 5 साल 4 साल 5 साल में हम देख रहे हैं बिहार में बहुत ही अच्छा हम लोग का एक इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है। और आई एम थैंकफुल टू मिस्टर यादव कि आप यहाँ आए हैं और आप इतना बढ़िया चीज उन्होंने कहा कि मेजर रोल होता है कि हमें जो प्रॉब्लम फेस करते हैं फाउंडर का करते, स्टार्टअप में फाउंडर की इतनी प्रॉब्लम है कि
वो रिटेंशन बहुत पुअर है। अगर आज के देखेंगे फाउंडर है तो कल वो रहेगा कि नहीं रहेगा, आपस आपस में डिस्प्यूट होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो कहीं ना कहीं फाउंडर का अगर हम लोग प्रोवाइड दो तीन चीजें चैलेंज जो हम बिहार में एज ए इंक्यूबेटर फेस करते हैं, अगर हम इंटरेक्ट करते हैं, तो पहला होता है कि फाउंडर की कमी होती है, कोई एक दूसरे का रिटेंशन इतना ज्यादा होता है जिसके कारण बंद होता है। मेंटरशिप भी बहुत कम है। मेंटरशिप का कई तरह के मेंटरशिप होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेंटरशिप है ना, वो इसके सिचुएशन को समझना होगा, क्योंकि हम बंगलौर के सिचुएशन को, अहमदाबाद की सिचुएशन को और कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। बिहार की अपनी एक सिचुएशन है, बिहार का अपना एक सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, बिहार का अपना ट्रेडिशनल बिलीव है। जब हम छठ के समय में बिहार को जो देखते हैं और जब हम दूसरे समय में देखते हैं, दोनों का ट्रस्ट की कमी है लोगों में, इन्वेस्टर की बिहार में। यही हमारा कई ऐसे स्टार्टअप है जो नोएडा शिफ्ट कर गए हैं, बैंगलोर शिफ्ट कर गए हैं, वो बहुत अच्छे हो गए, लेकिन वो बिहार से अगर ऑपरेट कर रहा है तो इसकी ट्रस्ट की कमी बनी। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर यादव से कि वो कैसे हम एक बिल्डअप करें एटमोस्फियर को, सो दैट कि यहाँ का ट्रस्ट हो। अच्छे हैं बच्चे, बहुत अच्छे हैं, लोग भी बहुत अच्छे कर रहे हैं, कम समय में बहुत अच्छे हो रहे हैं। लेकिन अ, जो जो इन्वेस्टर्स को जो हम देखते हैं, जब इन्वेस्टर की बात करते हैं, तो इनको थोड़ा सेप्टिकल बिहेवियर होता है कि नहीं बिहार में करेंगे, मुझे पैसा देगा कि नहीं देगा, रिटर्न करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन ऐसी चीज आपने बहुत अच्छा कहा है कि हमें आपकी लक्ष्मी बिहार की है और हमें जो है ना, तो ये चीज एक एक बहुत बड़ी चीज है। कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए समूह की, जब हम स्टार्टअप बन सकेंगे और एंटरप्रेन्योर्स बन। इसीलिए मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हम लोगों को सारा सपोर्ट करें और हम लोग रेडी हैं इसको करने। Thank you for Thank you, sir, for giving us the opportunity. I am Dr. Bhavani Shankar Das, Assistant Professor of Civil Engineering Department. I am the member of Incubation Center NIT Partner. Actually, I am with us. Did you get my email? Sorry. Did you get my email? No, sir, not yet. That's you crazy. Anyway, go ahead. Yes. So actually, our incubation center is having 12 now startup. Our institute having a 12 startup, and हम ये सब एसोसिएट होकर मेंटर कर रहे हैं। अराउंड 34 स्टूडेंट स्टार्टअप अभी इंक्यूबेट हुए हैं हमारे साथ, हम उनको मेंटरिंग कर रहे हैं। हमारा इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल है, जो कि इंस्टीट्यूट का जो भी इंक्यूबेशन एंटरप्राइज से रिलेटेड एक्टिविटी को एनुअली उसको बहुत सारे इवेंट व्हाट्सएप के थ्रू मोटिवेट करते हैं हमारे स्टूडेंट को। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा एक मालवीय मिशन टीचर्स ट्रेनिंग के थ्रू कि फैकल्टी में कैपेसिटी बिल्डिंग एंड डिजाइन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की फैकल्टी को स्ट्रेंथन करे, सो दैट कि थ्रू देयर कोर कोर्सेज, सिलेक्टेड कोर्सेज, वो स्टूडेंट को मोटिवेट कर पाए टू मूव टुवर्ड्स द क्रिटिकल थिंकिंग। तो कोई भी हमारा जो सब्जेक्ट लाइक सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसमें कैसे थ्योरी कोर्स से हम कैसे हम फाइनल ईयर आते हैं, यूजी फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर आते हैं, हमारा कुछ स्टार्टअप आइडिया हम बना सकते हो, प्रोटोटाइप डेवलप कर सकते हैं। उसके लिए हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम फैकल्टी का अभी प्रेजेंटली हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट आईपीआर सेल हमारा बहुत एक्टिव है, जिसमें 90+ पेटेंट ऑलरेडी ग्रांटेड हो चुका है। अभी कोशिश चल रहा है कैसे उसको हम कमर्शियलाइज करें वो पेटेंट को। एंड टिंकरिंग लैब और ई सेल, ई क्लब उसका इवेंट होता है। और मेन चैलेंजेस अभी मेरे साथ प्रोफेसर सुब्रत दास है, जो कि फैकल्टी हैं, जो फर्स्ट फैकल्टी फ्रॉम एनआईटी पटना who is going to register his company in reactor, and along with me Dr. Shiv Shankar Kumar and Dr. Tilochan Penthia. He has the idea, they have the idea, e-vehicle and electric resistivity meter, उसको डेवलप करने में उनका मन है, और मैं उनको लाए यहाँ पे कि जिससे कि हम इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट हो पाए और लोकल बिहार रीजन में हम कैसे हमारा प्रोडक्ट डेवलप करके नियर बाय इंस्टीट्यूट और इंडस्ट्री को हम कैसे फैसिलिटेट कर पाए, हमारे प्रोडक्ट को कैसे वहां तक पहुंचाए। तो दिस इज द मेन गोल ऑफ आवर इंक्यूबेशन सेंटर। So I request our sir. Sir, just one thing I just tell you that हम लोग का अभी the current the electrical situation is very good.
क्योंकि जो भी फर्स्ट ईयर में जो वैरायटी पढ़ने का कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट एंट्री होता है, इमीडिएटली वी ऑफर द फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर इनोवेशन प्रोजेक्ट। हर स्टूडेंट को ये कंपलसरी प्रोजेक्ट है, तो मैं जस्ट शेयर कर रहा हूँ दिस इज। तो उसमें हर स्टूडेंट को हम लोग ये, जैसे हमें हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री एंड ऑल्सो केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, तो मैं क्या करता हूँ, मैं पर्सनली हेड को इसको हम लोग इनिशियल लेवल में स्क्रीनिंग करता हूँ। तो हर स्टूडेंट को मैं एक प्रोजेक्ट दे देता हूँ, इनोवेशन प्रोजेक्ट। यू हैव टू कंप्लीट। जैसे अभी हम लोग का जैसे अभी इंटेक बहुत कम टाइम स्टूडेंट, अभी नया नया केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट खुला है, तो उसमें हम लोग क्या कर रहे हो, तो पहले हर स्टूडेंट को एक इनोवेशन प्रोजेक्ट देता हूँ इनिशियल लेवल में। तो वो स्क्रीनिंग करते हैं क्या आइडिया है, कोई जैसे अभी गंगा स्टार्टर में दे रहा है, कोई अभी ट्रैफिक सिस्टम में कर रहा है, कोई पेटेंट के ऊपर ही कर रहा है। तो मतलब इस तरह का हम लोग फर्स्ट सेशन में फर्स्ट सेमिस्टर से शुरू कर देता हूँ। तो माइनर फर्स्ट सेमिस्टर में, फिर सेकंड सेमिस्टर में उसको हम लोग मेजर में कर लेते हैं। तो इनिशियल स्क्रीनिंग होने के बाद स्टूडेंट में बहुत इंटरेस्ट आ जाता है। वो मैंने अभी ऑब्जर्व कर रहा हूँ लास्ट 4-5 ईयर से बहुत डेवलप कर रहा है। और उसमें देख रहा हूँ काफी स्टूडेंट बहुत मतलब आगे आ रहा है। और उसको लेके फिर हम लोग उसको सेकंड इंक्यूबेशन सेंटर में जो हम लोग को उसमें हम लोग फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो इस तरह का हम लोग इनिशियल अभी स्क्रीनिंग करता हूँ। और सेकंड जो है, अभी मेरा जो लास्ट सर भी था, सर कुंदन सर जी आपका बियर स्टार्टअप से भी मुझे भी ग्रांटिंग मिला है अभी। तो मेरा जो अपना फोटो रिएक्टर सीएफएल लाइट, ये जो इसमें हम लोग ने क्या किया, जैसे हम लोग ने फोटो रिएक्टर डेवलप किया जो ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन है, शायद केमिस्ट्री बैकग्राउंड है। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में जितना जो रहा है सब टॉक्सिक केमिकल बहुत होता है। आपको ये इसमें ग्रीन केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट इसलिए बहुत 1991 में ग्रीन केमिस्ट्री यूएस ने मैंडेटरी कर दिया, और जॉन सी वार्नर, और ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो केमिस्ट्री का जो होता है उसको केमिकल टॉक्सिक केमिकल को एनवायरमेंटली फ्रेंडली करना है। तो हम लोग को जितना केमिकल रिएक्शन करना, हम लोग सिंपल एलईडी बल्ब से हम लोग उसमें काम करना है। तो ऐसा मार्केट है, ऐसा नहीं है। जैसे मैकमिलन है 2022 में गॉट द नोबेल प्राइज इन द वर्किंग इन द रिएक्टर, लेकिन उसका है कि ये है कि लेबोरेटरी स्केल ओनली मिलीग्राम। एंड इंडस्ट्री भी है, इंडस्ट्री भी बहुत बड़ा स्केल में, ये मतलब ये ग्राम स्केल में। तो मिलीग्राम स्केल टू केजी स्केल में जाते हुए तो ये गैप आ जाता है। मिलीग्राम में जो करता हूँ, जो केजी में करता हूँ, वो सक्सेस नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग ने अपना स्टूडेंट के साथ अपना लेबोरेटरी में वो गैप को रिड्यूस करने के लिए हम लोग बैच फ्लो, मतलब एक ही रिएक्टर में मिलीग्राम से लेके हम लोग केजी स्केल तक हम लोग कर सकते हैं। तो उसका ऊपर हम लोग ने पैटर्न किया। तो पैटर्न भी हम लोग 22 में ही हो गया। और हम लोग स्टार्टअप भी हम लोग इंक्यूबेशन सेंटर के थ्रू में हम लोग ने स्टार्टअप भी खोल दिया। ऐसे बैच फ्लो पकड़ गया। तो चैलेंजेस क्या होता है, तो मैं भी जब ऐसा प्रोफेसर हमेशा ही पब्लिकेशन जो भी है हम लोग का, जैसे चैन बन गया हमेशा पब्लिकेशन पेपर करो, वो सब में और प्लस ये दो हम लोग का प्राइम होता है। हम लोग ये समझ नहीं पाता हूँ तो पैकेज करना, उसको टेक्नोलॉजी कैसे ट्रांसफर करना, उसमें हम लोग का थोड़ा गैप लगा था। रिसेंटली बहुत आगे चल रहा है। आप बोल रहे हैं कि हम लोग का ऑलमोस्ट 90+ ग्रांटेड हो चुका है। तो लेकिन इनिशियल लेवल में अभी लास्ट वाइज से हम लोग को जो प्रॉब्लम होता है, कैसे होगा, इतना हेडेक ले पाऊंगा कि नहीं, कैसे कंपनी में करूंगा, कैसे कौन इसको सेल करेगा। ये मैंने अभी फोटो रिएक्टर डेवलप कर दी, बिहार जोन में रह जाएगा, कैसे बाहर जाएगा। मेरा इसको बोल रहा हूँ सारा अगर आया, सारा अगर यूएस में अगर मेरा फोटो रिएक्टर को डेवलप कर देगा, उस तरह का थिंकिंग आ रहा है। तो वो हम लोग का भी सोचता है। तो वो हम लोग को एक्चुअली वो मार्केटाइजेशन कैसे करूंगा, कैसे उसको पॉपुलराइजेशन, कैसे उसको एक्सप्लोर करूंगा, वो हम लोग को अभी तक क्लियर नहीं है। उस पर हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, मेरा मन में है, लेकिन इंक्यूबेशन सेंटर उस पर ही काम कर रहे हैं। थैंक यू। तो सर मैं रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ कि ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में कैसे आप साथ हम पहुंचे और हमारा इकोसिस्टम को कैसे ग्रोड कर पाए, और जैसे सर का जैसे जो इशू है कि कैसे मार्केट रीच टू दिस बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन एंड बिहार इकोसिस्टम, वी कैन डेफिनेटली आई बिलीव दैट आप सर प्रोडक्ट जो भी होगा हम नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल में लेके जा पाएंगे। Largely from Bihar Industry Association, अच्छा। ये भी बता दें कि हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जिस रमेश यादव महोदय मेंबर है। Fortunately, very enlightening session of all the incubation center and distinguished guest, Mr. Ramesh sir. But individually, when I 20 years back, when you Patna first session was when the Sridhar Iyengar was there. Because you were there and it was my first journey of the entrepreneur and that time. So it's very privileged for us that I am seeing you after 20 years and remain
same kind of the passion you have, and that time also you're encouraging the same passion for entrepreneurship and all the same thing happening. With the all IIT, CIMP and NIT Patna experience, हम लोगों ने 2015 से बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन ने जो कि अभी करण साहब ने कहा, बिहार में हम लोगों ने एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया इनेबलिंग एंटरप्रेन्योरशिप, बिकॉज बिहार एक ओल्ड बिहार एंड झारखंड सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर था। तो नॉर्मल बिहार में जो बच्चे आ रहे थे या उनका था, they first wanted to succeed in their education. When we went to a lot of institution, it was that अभी तो हम पढ़ रहे हैं, जॉब करेंगे, फिर सेकेंड लाइफ जब मेरी शादी हो जाएगी ना, उसके बाद फिर हम एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे। तो आफ्टर दैट जर्नी 24 में अगर आप देखें तो बिहार हैव ग्रोन वेरी फास्टली। आई मीन यू आर वेरी ट्रू कि हम बैंगलोर लोकेशनल एडवांटेज पे नहीं आ सकते हैं, लेकिन इंडिया में जो सिलिकॉन वैली बैंगलोर है या चेन्नई, हैदराबाद एंड पुणे, if you count the 40% of the diaspora are from the Bihar itself, all the entrepreneurships and all. So in that way, we have enabling environment in Bihar of the successful entrepreneurs. So now the students are also coming, and then after coming from your institution, they are looking at the first, not first. Earlier it was not a first now, but most of the students first option as a successful entrepreneur. So they are looking for the startup as a ecosystem. Till now date, what we are facing, the same thing is actually the great ideas with the grassroots level, team building, mentorships and all these things. What I meant, they're passionate with the others and immediate success. वो किसी ओला कैब को और देखना है, but they are not having a patience to become a successful entrepreneur. You have a time. Like you have given a very great idea of the ISRO. What they have done, the certain resources they have made innovation like India has become a big advantage, because same kind of the services we are offering in fraction of cost compared to our other US counterparts and all this thing. Similar in startup ecosystems, they wanted to succeed, but they want to succeed in a very short span period. They are not looking. So now we have a second generation of mentoring requires people like you to how to build a team, a great team with the innovations and with the right kind of the mentorships, great team, and how we can transform those viable opportunities. So these are the areas of the incubations where we are working, and we are looking at people like you who have a great experience of 25 years in that. And so we will be looking more forward participation from you, sir. Till now, Bihar Industry Association, we are the first after the CIA, we are the second one in India. If business incubation centers set up करने वाले industry house है, बाकी तो जितने सारे लोग हैं वो academic institutions हैं, and these are our experience. So we would looking कि आप हमारे यहाँ भी एक session conduct करें individual startups का, अगर आपके पास time है वो भी करेंगे. And now till date we have 140 incubation startup. A number of startup graduated 40, or I mean under Bihar startup policies, we have a 42, and we have also fundraising in the BCI, Government of India. And we were the first incubation centers who got recognition with the government of that in their 2016 policies when they started. And the total facilitated incubating under Bihar startup policies, when we have received till date 3.15 crores, and total fund facilitated to the incubating in the last years under the SIF DPIT. This is the government of India. Thank you. And we have partners with Different of the incubator. It works well because we are working on business side and they are mostly on technology side. And we have worked. recent MOU with the type of company. Yeah, I think let's listen to all of them. Yes, Good evening, sir. My name is Abhijit Nara. I'm the founder of Green Shelter. It's a one-stop gardening solution. Started in 2016. And sir, initially you shared your view on the team spirits. So, we all face their challenges.
So you start with a hypothesis, you start with a plan, okay, we will solve this problem, and that's how you will build your business. But then let's say that hypothesis do not give that much of result. Then you lose two things, you lose money, you lose time. Then again to how to restart, because that's a basic challenge we all face. And that's the biggest hindrance. You lose money, you lose time, and obviously somehow you lose trust of the investors or your mentors. So that's the biggest challenge, sir. We all cope up with that, but then that's a practical problem. They need your help in that, sir. Good evening, sir. My name is Lalu Kumar, founder of Shandar Services. शानदार सर्विसेज बेसिकली वन स्टॉप सॉल्यूशन है होम सर्विसेज के रिगार्डिंग, जैसे कि क्लीनिंग, सैनिटाइजेशन, पेस्ट कंट्रोल, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मेड, बेबी सिटिंग, ये सारे सर्विसेज को हम लोग एक ऐप के माध्यम से विद इन 1 आवर यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। एक्चुअली जितने भी इंक्यूबेशन सेंटर और सभी लोग जैसा कि ऑलरेडी डिस्कस किए हैं कि जो मेजर प्रॉब्लम जो हम लोग को ग्रास रूट पे आ रहा है वो मल्टीपल चीजें हैं। हमें सबसे बड़ी चीज जो रिक्वायरमेंट है, सेशन तो इम्पोर्टेंट है ही, हैंड होल्डिंग सपोर्ट की, जैसे हम लोग चल रहे हैं आगे, रास्ता हम लोग को जहां तक दिख रहा है, रोशनी जहां तक है हम लोग वहीं तक बढ़ पा रहे हैं, उससे आगे अब कैसे बढ़ना है वहां पे प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग को हैंड होल्डिंग ऐसा सपोर्ट, मतलब कि यहाँ पे मल्टीपल इंक्यूबेशन सेंटर्स बैठे हुए हैं, सिर्फ सेशन ही नहीं, एक हाथ पकड़ के चलना जो है ना कि बेटा अब यहाँ से ऐसे चलो, ये अगला सीढ़ी है, इस हिसाब से देखो आगे गिर जाओगे। तो इस टाइप से थोड़ा देखिए। आप जैसे कि टीम बिल्डिंग में हम लोग को प्रॉब्लम आता है, यहाँ बहुत सारा चीज रहता है कि ट्रस्ट इशू की टीम को, या अपने जब बिल्ड कर रहे होते हैं उनको समझा रहे होते हैं कि ये इसका मतलब आम होता है, हम उसका कटाल, ये थोड़ा सा बहुत प्रॉब्लम है यहाँ, तो मतलब माइंडसेट चेंज होने में, लोगों को समझाने में। तो सर पर्सनल हैंड होल्डिंग सपोर्ट सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी हैं इंक्यूबेशन सेंटर स्टार्टअप को दीजिए, क्योंकि सिर्फ अगर हम बोल के सिर्फ सेशन ही लेके कहेंगे तो चल जाएंगे, लेकिन उसके जो बगल पे जो फौजी घर है हमें उसको मुझे दिखाना पड़ेगा, चला करके दिखाना पड़ेगा कि हाँ ऐसे बंदूक चलता है। सो बेसिक सी चीज मेरे लिए यही रहेगा सर। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम संतोष है और हम लोग डेयरी सेक्टर में कर रहे हैं। और कुछ रीजन इस टाइप का है कि नेक्स्ट अमूल हम लोग बिहार से बना है और इसमें BIA का EIC बिहार विद्यापीठ और नवाड के सर एक CGM भी है सुनील सर, आउट ऑफ द बॉक्स जाके हम लोगों को सपोर्ट किया है। और अभी जो स्टार्टअप पॉइंट ऑफ व्यू से जो सर बिहार में अभी मिसिंग है ना, कि हम जितने भी स्टार्टअप है तो सब लोगों ने किसी न किसी एक NRI या जो बैंगलोर में बिहारी काम कर रहे हैं उनको अपने पैशन या अपने छोटे से रिजल्ट से और उनको दिखाया है कि कुछ हम अच्छा कर रहे हैं, उसमें 10 लाख 15 लाख वो लगा भी रहे हैं। जैसे केसरी सर ने भी लगाया है हमारी कंपनी में, और मेरे नाम और भी स्टार्टअप है उसमें भी लगाया है, और भी लोग हैं। पर इसमें मिसिंग क्या है कि पटना नहीं है, सॉरी पटना एंजल्स करके कोई ग्रुप नहीं है। तो इसका घटा क्या हो रहा है सर, अभी हम लोग एक अर्ली स्टेज VC है अंकुर कैपिटल और अवाना कैपिटल से, तो हमारा इंट्रोडक्शन कॉल हुआ है। तो मतलब 2-3 लोग थे बॉम्बे बैंगलोर से थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, इन्वेस्टमेंट थे। तो मतलब उनका ये रिएक्शन था, हमारा कहना था कि सर हम लोग 3 to 4 आवर्स में मिल्क को पटना में डिलीवर कर देंगे, पास्चराइजेशन का जरूरत नहीं है। ये कितना सही है नहीं है वो नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे तो हम उनको बता देंगे कि यही सही है। बट पहला रिएक्शन जो था, यार तुम क्या बात कर रहे हो, बिहार में 1.5 से 2 घंटे में पटना पहुंचेंगे क्या सर? और अभी सिचुएशन ऐसा है कि मुजफ्फरपुर से आप पटना 1 घंटे में 1.5 घंटे में आ सकते हैं, और ये पूरे बिहार का सिचुएशन सुधरा है। तो इसमें एक तो क्या है कि आप मतलब शायद आपके साथ भी ऐसा ही हो गया कि जब सिलिकॉन वैली आप उस टाइम गए होंगे तो लोग यही सवाल करते होंगे भारत में लोग ऐसा सोचता है क्या। तो सेम अभी बिहार के साथ हो रहा है, बैंगलोर वाले कुछ लोग सोचते हैं। लेकिन इसी में हमने चेंज क्या किया है कि कंट्री डिलाइट का पहला इन्वेस्टर ओरियोस वेंचर, उनके जो MD है उनको हम लोग बिहार तक लेके आए। मे बी वो दिसंबर इन तक हमारे यहाँ विजिट करके हमारे सिस्टम को समझेंगे, सब कुछ सही रहा तो इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। तो सर इसमें एक अगर सपोर्ट मिलेगी पटना का कोई, सॉरी पटना एंजल्स का कोई ग्रुप हो, उसमें हम ही लोग टारगेट कर रहे हैं बहुत सारे लोगों को 10 लाख 15 लाख लगाने का, तो करीब 50-60 लाख रुपया इजिली आ सकता है। बट अगर वो इंडिविजुअल लेवल से करेंगे तो उसका कोई बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा सर। तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके पटना एंजल्स का सर इनकॉर्पोरेशन कराने में सर आपका सपोर्ट चाहिए होगा, राज दुबे सर का चाहिए होगा।
और ये सर सीजीएम सर का भी जो सुनील सर है उनका भी चाहिए मतलब कि कितना जल्दी हम इसको राउंड आउट कर सके मतलब स्टार्टअप के पॉइंट ऑफ व्यू से यही सर मेंटरशिप के लिए सर हम लोग खुद कुआं है सर तो सॉरी प्यास है तो कुआं के पास जाएंगे हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे सर मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें बस वो टायर पटना एंजल्स का ग्रुप चाहिए सर वो कब मिलता है टाई पटना एंजल्स का गठन हो रहा है बहुत जल्दी आपको उसका हो जाएगा। Good evening, I'm Dr. Swarnim, we know that we that it's clear and all the fellow co-founders and startup people. So basically, we are building a product which is called Kinesio. It's a health tech product. We have developed an AI assistant for doctors, and the whole idea is to optimize the doctor-patient ecosystem so that all the workflows that there are too many inefficiencies in the existing workflow कि जो patient बेचारा सुबह आता है उसको शाम में देखा जाता है जो patient को available होने वाली resources कि कब doctor कहाँ पे मिल सकता है पता नहीं होता है so there are several inefficiencies and being like working in the government sector for more than 10-15 years understand it from a grassroots level sir कि क्या problem है and because we also have a technological mindset all my friends have been from IIT that we have all grown up in Patna and we had I would just like to contradict a bit that we had that critical thinking and we proved ourselves even on a national and an international level by making it to the top institutes and all of that. But I would still like to bring upon the fact that we got a lot of appreciation and in the 1 year that we exist now, incubated around a year back, we have got all the grants, like we have got Startup India support, we have Startup grant, a lot of recognition. We got like top emerging startup in the Bharat because someone got a chance to present ourselves at several events. And even I individually wanted to enhance my entrepreneurship skills, so I enrolled in the IIT Delhi Healthcare Entrepreneurship and Management course and topped the batch. So honestly, we are trying our level best because it is definitely coming from a place of passion that we see the problem and we know we can make a change. But actually speaking now, sir, when we will have to take the product to the market, how do we do it in Bihar? Because if you talk about Karnataka and elsewhere, because whenever we go to these cities to represent our startup, we know that our startup, which is even not as good as ours, have a hand-holding support and an immediate market access. They know that they can tie up with this particular place and they'll have immediate 10-15 hospitals available where they can do the beta testing. They'll have probably another further expansion program ready. But we have nothing like that. So despite all the support that we have got from AIC and IT Patna, I'd still like to highlight that there is a lot of things that we can do. And as long as it is not existing in Bihar, if something can be created by an interstate sort of collaboration, कि अगर बिहार में नहीं है तो कम से कम जहाँ पे है उसके साथ we can do some sort of collaboration so that we have a global product. To be honest, we have friends who are working in US and UK. They many of the times say, why are you trying to even push yourself in Patna, expand? And that too, if we will fail, we'll definitely expand. But I would still say, being a Bihari, a very proud Bihari, that I want to make a difference. Thank you. हेलो सर, मेरा नाम शम्स परवेज है। हम लोग एक ईवीएस मैनेजमेंट कर रहे हैं का स्टार्टअप है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को डिसमेंटल करके पार्ट्स को दोबारा सेल आउट करते हैं। मतलब जैसे कि आपने हार्डवेयर के बारे में बोला था 3.5 mm का, तो उसके भी मदरबोर्ड या कोई भी पार्ट जो है ना वो कंपनी दोबारा नहीं देती। इस वजह से हम लोग रिस्टोर्ड पार्ट्स दोबारा मार्केट में जो रिपेयर करते हैं उन सभी को दोबारा अवेलेबल करवाते हैं, दोबारा सेल आउट करते हैं। हम लोग बिहार की पहली यूएस मैनेजमेंट कंपनी है और पूरे इंडिया में सिर्फ 4 ही वैसी मैनेजमेंट कंपनी है जो 200 करोड़ के ऊपर गई है। हम लोग अभी 1 साल पहले कंपनी रजिस्टर हुआ है और 2-3 महीने से हम लोग यही बिहार बीआईए के जस्ट पीछे हम लोगों ने अपना 1350 स्क्वायर फीट का अपना स्पेस लेकर वहां पर डाले 3 महीने पहले और हम लोग काफी अभी दे चुके हैं बिहार में। Any other question or suggestion? I'd like to say something. Some of these skills are already met actually. तो वैसे हम मिले हैं
and there's a whole lot of spirit in Bihar. I mean, yeah, when I came back 15 years ago to start up my company in Patna, most people around the world thought I was crazy. I mean, I was at Cornell actually, and I came back to Delhi, to Bombay, and then to Bombay to Patna. And then from Patna, I went to a place called Siljori, which is a village in Banka district near Devgarh. So I've traveled a long way, and I've been here 15 years. And my experience says that nothing is impossible. You can do it. Yeah, there's somebody who had mentioned that, when things don't work out, there's a lot of waste of, investment but you gain a lot of experience, and that experience leads to new things. Of course, I've had the best of education. I went to Doan School, IIT, and then Cornell. But one thing that I just, since we've listened to all of these institutes and your startup ecosystem that you're creating, at Cornell, we have this course, which is called Entrepreneurship for Scientists and Engineers. And they helped us make business plans. They had somebody from Silicon Valley, an investor, who came to Cornell and in the business school, and they helped us make they also had, like, you have an app, then you had a format kind of thing, Excel sheet format. And you put in your numbers and you try to see whether it's working or not. IRR is right, or the PAT, or the profit before tax, after tax, you get the numbers or not. So that was just a tool. But in the course they taught us finance. They taught us various things of management that entrepreneurs need. And one of the things was, of course, finance. So, we have IITs and NITs and others, and they're purely technical institutes. And Cornell had, of course, it's got a very good technical side, engineering department. I mean, they didn't call it, and they have the other even. What I was able to do personally, that experience, there was a time, I'm an architect by profession. I went to a planning course, I was learning how to do city plan. And then my problem was Bihar. I used to always talk about Bihar. They all named me, those people who came all from the guests like you came, they would say, yeah, he's the Bihar guy. So I went to the agriculture college. I went to the law school. I went to the management schools. And I was there in the design art school, college already. And so I could get a varied experience for my project. I'm working on food and agri, and I'm working on the grassroots level. I work with farmers and things. I've been doing that for 15 years. So I could understand. There were some IAS folks in my, Indian Administrative Service. There were from a friend as well. I mean, he was somebody I knew. So he was an IAS fellow and another two who had gone for PhD or something to Cornell. And they used to ask me a question that very well on the data and the data to actually analyze your project, I was available at the Government of India website and they didn't know about it. They were the ones who created it. So there's a lot of information, knowledge, and things which is available. And I was lucky to get hold of all that, come here. And like I told people, I had a step. I met Mr. Ratan Tata, who just deceased recently. So he, brought me to India. And I told him about this project, and he said, first you come and join me, and you can see. So I paid off my loans working for the Tatas, and then I came back to Bihar. But it was a journey which has to be traveled. And they say in 5 years, certain number of startups can only succeed in 10 years. In Bihar, that 5 years converted to 15 years, or 10 years for that matter. I mean, I saw that what takes 5 years in Silicon Valley or in the US took me 10 years, 15 years to do. And today, after 15 years, when I stand here, I question somebody asked me, said, so what is it? Is it okay after 15 years? And I said, yeah, I'm still here. So that, it proves the point. Anyway, there was somebody who said light at the end of the tunnel, torch light, I could pull the darkness hai. देखिए, entrepreneurship to darkness hai. There is nobody who can show you a torchlight which is. I don't think even Bill Gates can tell you, or even Steve Jobs could tell you, because you have your own journey, and there is nobody else who can tell you कि आप 10 मिनट के बाद क्या है.
या क्या प्रॉब्लम आने वाली है। अभी तो आप सोच लेंगे आज, यू नो दैट थिंग सेइंग लिव द डे, एज एन एंटरप्रेन्योर वी लिव द डे एवरी डे। आई मीन दैट इज व्हाट यू डू। आज का दिन चला गया अच्छे से, वही बहुत अच्छा है, कल का दिन कैसा जाएगा मालूम नहीं। So that's the way you operate, and that experience of mine for 15 years. Recently I was interviewed by somebody, you know, these YouTube channel and all. There was some fellow from Dallas who interviewed me, and he asked me, "So what do you think? Is it good after 15 years? Was it good coming back from Cornell, coming doing Tata's and coming?" I said, "Yeah, you have to. If you love the experience of doing it, it's great. But if a founder, you know, the founders need training in a way to be able to survive that grit. All the industrialists who are here for many generations, they know that grit and Most determination. of us are entrepreneurs. Yeah, exactly. And therefore you know that grit and determination. Sorry, I'm taking too long. Anybody else? Thanks, man, all. So from my side, it's 5 minutes, but floor is yours. Thank you, SB. Thank you, SB. I'm a local lad. I'm a Bihari boy. I studied until so here, manager. I'm a perfect example of a local product going global. Studied here in Sir Ganesh Dutt Patliputra Uch Vidyalaya in a Hindi medium, paying 25 naya paisa. Went to Ganesh Mahavidyalaya, studied there, went to Delhi University, did my graduation, did my law, did my CS, and then I did my master's in University of California, Davis. That's my background. So I'm an example of that kind of success, which you all are talking about. So I know how to take a local product going to the global market. Okay? I work in more than 40 countries today. I have helped more than 10 country government in their work here, facilitating them in setting up their incubation centers, their promotional things, and connecting them. And खूब बढ़िया भोजपुरी बोली, अपना बढ़िया भोजपुरी बोलेगा, इस सब के मन खुश हो। ऐसे सबसे पहला बात खुद पे, अपना भाषा पे, कल्चर पे खुद पे बहुत दम रख। आपकी बोली से मुझे पता है बंगाली, so আমি খুব ভালো বাংলা বলতে পারি। কত ভালো? খুব right? So you are successful. So what I'm trying to tell you that entrepreneurship is not one thing. It's collection of multiple things. Success is not written with a word. It's a hell of a lot of action directed in a right direction with lots of patience and intelligence. बहुत ज्ञान है बिहार में खासकर, सब ज्ञानी है, लेने वाले बहुत कम ज्ञानी है। इसीलिए 2024 में महाराष्ट्र का 84 IPO था, 84, बिहार से एक, वो भी सिर्फ कंपनी चूंकि इनकॉर्पोरेट हुई थी इसलिए उसको बिहार से एक IPO। 13 करोड़ की जनता है, सब बुद्धिमान लोग हैं। What's going wrong here? Just one thing. We are not networking properly. Umaji has now started once again the journey of time. We came together 20 years back. Probably we were, मेरा नाम जोकर जब पहले रिलीज हो गए थे, फर्स्ट रिलीज में बेचारा फ्लॉप कर गया था, right? So that's what I'm trying to tell you. Money is not a problem today, but don't think that somebody will come and just give you money. They won't. पैसा 3 तरह का होता है भाई, एक अपने कपड़े के लिए आप खरीदते हैं, खुद के यूज के लिए, एक मंदिर में जाते हैं चैरिटी करते हैं, ना भगवान से कुछ पूछते हैं ना वो कोई आपसे पूछता है, और तीसरा होता है जब आप इन्वेस्ट करते हैं, आप चवन्नी भी वहां इन्वेस्ट कर नहीं करते जहां आपको लगता है पैसा तो डूब।
नहीं करते। कैपिटल इज द मोस्ट कावर्ड थिंग इन द वर्ल्ड। बहुत दूर से आपको देखता है, उसको जरा सा भी रिस्क अगर लगता है भाग। इसलिए जब आप बोलते हैं ना इन्वेस्टर्स इन्वेस्टर्स इन्वेस्टर, पैसे ना आई, दूध बेचला सही से ना आई, सॉलिड दूध देखा, प्रोडक्ट देखा। What is your value addition, man? What is your value addition? Entrepreneurial businesses, if you look into it, there are three types. Conventional, इतनी बड़ी business है, आपको तो अपने आप आना है, right? Then second is modern, right now जो चल रहा है, तो लैपटॉप खराब हो गया जी, फोन खराब हो गया जी, जगह जगह आप देख रहे हैं, इसके वो टेम्पर ग्लास लगा दी, and some of them are futuristic. Some people are thinking space next क्या है? Somebody is saying सोलर में नेक्स्ट क्या है? आप समझ रहे हैं भाई, आप केमिकल इंजीनियरिंग में क्या है? सो अलग अलग तरह के बिजनेसेस के लिए अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। प्लग पिन है भाई साहब, 2 प्लग पिन में 3 प्लग पिन नहीं जाएगा, राइट? तो बिल्कुल लोकल ढंग से सोचिए, बिल्कुल बेसिक ढंग से सोचिए, and I'm guaranteeing you, money is not a problem. There's one institution called International Solar Alliance. You know how much fund they're sitting on? $1,000 billion. $1,000 billion. They're sitting on it. They're just looking for the project to fund. There's no lack of money. The moment you go to any investor, पैसा दे दीजिए, वो कहेगा कंपनी दिखाइए, आप कहें तो हमारे सीए साहब है, हरी भाई हमरा कहाँ है भाई, कंपनी का कहाँ, फीस देवे नहीं करते हैं आप तो। What? So you are in a big fix, man. Try to understand. This is important. In order to get your investor interested in you, you have to be organized, right? हमारे आईटी के डायरेक्टर साहब मिले, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हमारे बहुत सारे बच्चे जो हैं उनका पेटेंट नहीं हो पा, so please do something. So we are coming to this city in December. We are setting up a satellite office here, small satellite office, primarily to support the startups and to the industry, hooking them into the global market, arranging necessary funds for them, and making sure that what Ramesh just said, how to develop your horizon globally. यहाँ बैठ के सोचने से कुछ नहीं होगा। वसुधैव कुटुंबकम कहा गया, इसीलिए बड़ा परिवार। So keep on thinking big, think big, बहुत सारा, मुट्ठी भर में पूरा आसमान चाहिए साहब। कॉस्ट बताइए, और कॉस्ट है आपकी मेहनत, आपकी सोच, आपका लगन और सिस्टमैटिक वर्किंग। Just do it. Success is guaranteed. Success is never a chance. It has never been a chance. Thank you, great speaker, sir. VIA is really grateful for the insightful words and the experience which you have said. It's not every day that we get to hear such a wealth of knowledge, and today we are fortunate to have had this opportunity. I would like to thank Kumud Ranjan ji, Raj Dubey ji, Sunil ji, and member of IIT Patna, Anjali Innovation Center, NIT Patna, Anurag ji. And we hope that this will be a beginning of a long and a fruitful relation between us. Thank you.